السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو دی بیسٹ ناولس ناول جارے من کی ایپیسوڈ نمبر 16 اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کہہ رہا ہے آ رہا ہوں، راہم نے فون کاٹ کر بتایا تو فائقہ بیگم اور وہ کچھ مطمئن ہوئی۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ جاؤ ماہی، ریڈی ہو، تم بھی جلدی آنا۔ ہنا نے اسے بیٹھا دیکھ جلدی سے کہا تو وہ بھی خود کو سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح سے ویسے ہی دل اداس ہو رہا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر ڈریس نکالا اور چینج کرنے چلی گئی۔ بات وہ دوپہر کو لے چکی تھی۔ یلو فراق میں اس کا سراپا چھپ گیا تھا۔ یہ ڈریس ماما کی پسند کا تھا۔ وہ آہستہ سے دکھی دل سے مسکراتی۔ لائٹ سے میک اپ میں اس کا سوگوار چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ہاتھوں میں گجرے پہننے لگی۔ زیان کو اس کے ہاتھ بہت پسند، اس لیے وہ خاص طور پر ان کا خیال رکھنے لگی تھی۔ ناخن اس نے ضد کر کے بڑھا دیے تھے، ان پر سرخ نیل پینٹ غضب ڈال رہا تھا۔ زیان کمرے میں آیا تو اس نے ڈریسنگ سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جسے نظر انداز کرتا ہے الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مناہل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا سارا تیار ہوئی اور وہ نظر انداز کر گیا۔ کہاں تھے آپ؟ کان کے بالی کو ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا، مگر اس نے کچھ رسپانس نہ دیا۔ مناہل کو غصہ آنے لگا۔ وہ کہاں اس کی لاتعلقی کی عادی تھی۔ میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ زیان نے ایک نظر اس کی جگمگاتے روپ پر ڈالی۔ شٹ اپ، دماغ خراب نہ کرو میرا اور جاؤ یہاں سے، سمجھی؟ انتہائی درشت لہجے میں کہہ کر اسے سائڈ پر کرتا واش روم میں گھس گیا۔ وہ حیران پریشان سی کھڑی اس کی پوچھ دیکھتی رہ گئی۔ شاید تھک گیا، میں نے خواہ پریشان کر دیا۔ خود ہی وجہ ڈھونڈتی لب کاٹتے ہوئے نیچے آ گئی۔ ماموں کی فیملی بھی آ چکی تھی۔ وہ انہی کے پاس آ گئی۔ ماشاءاللہ بڑی پیاری ہو گئی آپ تو۔ طوبیٰ کے گلے مل کر اسے چھیڑا تو وہ چھینپ سی گئی۔ وہ اور فہد 2 دن پہلے ہی آئے تھے۔ حسین تو تم ہو رہی ہو کہ اب بیوٹی کریمز لگانا شروع کر دی؟ طوبیٰ نے رازداری سے پوچھا تو اسے گور کر رہ گئی۔ وہ صبح کے مقابلے میں خود کو سنبھال چکی تھی۔ جب بولنا فضول ہی بولنا۔ اس کی کمر پر ہاتھ مارا۔ فہد طوبیٰ کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، جو گرین کرتا پاجامے میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اور فہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ یہ زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ فہد کو دیکھ کر اسے چھیڑا۔ نہیں بھابھی، ابھی تو ایسا کوئی خاص تنگ نہیں کیا۔ ہاں مگر زیان نے بتایا تھا آپ نے اسے ستایا ہوا ہے۔ فہد نے اس پر اٹیک کیا تو طوبیٰ اور باقی سب ہنس پڑے۔ یہ جو آپ کے دوست ہیں نا، ان سے کہیں ایک پیج پر ساری کمپلینٹس لکھ دیں۔ دانت پیستی وہی سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ماہی پوری کافی دینی پڑے گی، کیونکہ ایک دو مسئلے تو ہیں نہیں جو پیج پر آ جائیں۔ ریتا نے بھی اسے چھیڑا تو اسے گھورنے لگی۔ کافی دیر تک وہ لوگ باتوں میں مگن ہنسی مذاق کرتے رہے، مگر زیان اس طرف ایک بار بھی نہ آیا تھا۔ مناہل نے محسوس تو کیا، مگر نظر انداز کر گئی تھی۔ ابدال کیسا ہے؟ رامین اسٹیج پر بیٹھی تھی، وہ اس کے پاس آئی تھی۔ تمام رسمی ہو چکی تھی۔ موہت فہد اور راہم کے ساتھ تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیسا ہوگا؟ اورنج فراق اور چوڑی دار پاجامے میں غضب لاتی رامین کو دیکھا۔ خیر مزے میں ہوگا، اتنا شریف نہیں ہے وہ۔ رامی نے ماں نے تیزی سے کہا تو اس نے دانت پیس کر دیکھا۔ تم بہت بڑی موقع پرست ہو، اپنا کام نکلوا کر خود گنگا نہا کر بیٹھی ہو۔ رامین اس کے تپتے پر مسکرا بیٹھی۔ ڈونٹ وری سویٹی، تم بس زیان بھائی کو اپنے قریب کرو، کیونکہ اب وہ صرف تمہارے ہیں۔ اس کے اتنے کانفیڈنس پر عشاء اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیا بول رہی ہو؟ اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ تمہیں بھائی سے شادی کرنی ہے یا نہیں؟ اسے گھور کر اپنا دوپٹہ سائڈ پر کیا۔ اسے کہاں عادت تھی ان سب چیزوں کی؟ ہاں بٹ وہ تو اس مناہل کے آگے پیچھے پھرتا نظر آتا ہے ہر وقت۔ اس نے دور ردا اور ہنا کے ساتھ بیٹھی مناہل کو نفرت سے دیکھا۔ اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھائی کو اس سے بدل کر چکی ہوں۔ اب وہ ستی ساوتری ان کی نظر میں ایک بے وفا ڈائن سے زیادہ کچھ نہیں۔ کھلکھلاتے ہوئے ساری تفصیل بتائی۔ عشاء پر شادی مرگ سی کیفیت طاری کر گئی۔ رامین میری جان، یکدم پرجوش انداز میں اس سے لپٹ گئی۔ ہاں مگر تم بھائی کے سامنے ایسا کچھ مت کہنا جس سے ان کو شک ہو جائے۔ اس نے تنبیہ کی تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ دل کی کیفیت یکدم ہی بدلی تھی۔ اپنی منزل پہ سے آسان لگنے لگی تھی۔ زیان دور دور تک کہیں نہیں تھا، وہ خود ہی اسی کو ڈھونڈتی پہنچ گئی۔ وہ انتظامات دیکھ رہا تھا۔ زیان کہاں غائب ہو تم؟ لگ ہی نہیں رہا تمہاری بہن کی مایوں ہے۔ اس کی بازو پر ہاتھ رکھ کر ناراضگی سے بولی۔ بس بزی ہوں تھوڑا، تم چلو میں آتا ہوں، اس نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ عشاء کو کچھ تھکا تھکا سا لگا۔ نو جی ابھی چلو۔ عشاء یار، وہ اسے اپنے ساتھ ڈانس فلور پر لے آئی۔ ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ چاروں طرف میوزک کا شور اسپاٹ لائٹ جل رہی تھی۔ مناہل کی نگاہ ان دونوں پر اٹھی، جو مکمل طور پر ایک دوسرے میں مگن تھے، مگر وہ فوراً نگاہیں ہٹا گئی۔ نہ جانے کیوں آج زیان کا رویہ بالکل مختلف لگا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہاں سے اٹھ کر کونوں میں آ گئی۔ دل چاہ رہا تھا عشاء کا حشر بگاڑ دے، مٹھیاں بار بار کھول بند کر رہی تھی۔ تم ہمیشہ کونے میں ہی کیوں پائی جاتی ہو؟ موہت نے پاس آ کر اسے چھیڑا تو وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ صبح ہونے والے انکشاف نے رامین کی گھٹیا سوچ کو واضح کر دیا تھا، اس لیے وہ اب اسے ایسا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں پانی پینے آئی تھی، زبردستی مسکرا کر اسے دیکھا۔ موہت غور سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کچھ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔
क्या बात है, सब ठीक है ना? उसका परेशान चेहरा देखकर पूछा। हाँ, क्यों? मनाहिल ने चौंक कर उसे देखा मगर वो नफ़ी में सर हिलाता मुस्कुरा दिया। इस रूप में वो और भी दिलकश लग रही थी। माँ बनने की चमक इसके चेहरे को और हसीन बना रही थी। वो फौरन नजरें चुरा गया था। ये बताओ, ये तुबा बड़ी चमक गई, क्या कोई पॉलिश यूज़ करी है उसने? उसने तुबा की तरफ इशारा करते कहा तो ना चाहते हुए भी उसके बात पर लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जियान जिसे कब से गायब देख ढूंढता हुआ यहाँ पहुंचा था, मोहित के साथ मुस्कुराते देख उसको अंगारों पर लौटता महसूस किया और इस भयानक इंकशाफ की तस्दीक तो इसके मुस्कुराते चेहरे से साफ नजर आ रही थी। मनाहिल खुद पर जब्त के पैरे बिठाते सख्त लहजे में बोला। मनाहिल और वो बैक वक्त मुड़े थे। आप तो खैर की तरह मिले हमसे, मोहित इसके करीब आने पर खुश मिजाजी से बोला। बस बिजी था, अब तो मुलाकातें होती रहेंगी। मोहरवतन मुस्कुराकर सुर्ख आंखों से उसे देखकर जिसे नज़रअंदाज किए इधर उधर देख रही थी। हाँ सही बात है, वो सादगी से मुस्कुरा दिया। चले मैं जरा मामा को देख लूँ, पानी पीने आता। मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया जबकि जियान मनाहिल के करीब आ गया। क्या कर रही थी जहाँ? हाँ, सख्ती से उसकी कलाई पकड़कर धीमे लहजे में इस्तफसार किया। मनाहिल सी करके रह गई। छोड़े मुझे। इसकी सख्त गिरफ्त से अपनी कलाई निकालनी चाहिए, खुद कब शीशा में रखा था और इसका ख्याल अब आ रहा था। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है डैमिट। इसे झटका देकर करीब किया तो मनाहिल इसका सर रवैया देखकर हैरान थी। ताहियर से इसकी आंखों में देखने लगी। पानी पीने आई थी, हलक में अटकता गोला अंदर उतार कर धीरे से बोली। जियान ने झटके से दूर किया और ज़ाहिर खान नजरों से उसे देखता वहाँ से निकल गया जबकि मनाहिल चकराते सर के साथ वहीं चेयर पर बैठ गई। समझ नहीं आ रहा था आखिर इसके मूड को अचानक हो गया क्या। सारा वक्त वह खामोश खामोश जियान को ईशा के साथ देखकर कुटती रही थी। मनाहिल बीबी आप नहीं चल रही? नेमत ने स्टडी में मैगजीन पढ़ते देख ताज्जुब से पूछा। जिया साहब के साथ आऊँगी, पेज पलटते आम से लहजे में बोली। वो डार्क ब्लू शिफॉन के एम्ब्रॉयड फ्रॉक में जाने के लिए तैयार बैठी थी। आज बारात थी, तमाम अफराद होटल जा चुके थे। वो जियान के इंतजार में बैठी थी क्योंकि वो आज भी लेट हो गया था, इसलिए वो स्टडी में आ गई थी। लेकिन जियान बाबा तो अभी बाहर निकले हैं, आयशा बेबी लेने आई थी। नेमत ने सादगी से कहा मगर मनाहिल को यकीन न आया। क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने बताया नहीं इन्हें? वो तेजी से चेयर से उठी। बीवी जी मैं तो किचन में थी जब बाहर गाड़ी की हॉर्न हुआ तो वो बैठ कर जा चुके थे। उसने जल्दी से सफाई दी। मनाहिल को अपनी आंखों के आगे धुंध सी महसूस हुई। इस शख्स की खुद से बेगानगी नहीं से बेयकीन सा कर दिया था। दिल चाहा अभी थाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दे मगर खुद को संभालते बाहर निकल गई। माही बीबी मैं जाऊँ या रुकूं? भाई रशीद इंतजार कर रहा है, वो भी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। नहीं तुम जाओ, मैं राम भाई या बिलाल को बुला लूँगी। उसे कहती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। दिल यकदम हर चीज़ से बेजार हो गया था। अब इसका जाने का कोई इरादा ना था। जैन भाई माही कहाँ है? इन्होंने उसे ईशा के साथ आते देखा था मगर मनाहिल कहीं न थी। बारात भी आ चुकी थी। क्या मतलब? मुझे क्या पता तुम लोगों के साथ आई होगी? उसने हैरत से उसका परेशान चेहरा देखा। भाई वो तो हमारे साथ नहीं आई, कह रही थी आपके साथ आएंगी। तो मैंने घबरा कर कहा तो जियान ने परेशानी से फ़ोन निकाला और उसे कॉल करने लगा मगर फ़ोन ऑफ आ रहा था। इडियट! कान से हटाकर गुस्से से बढ़ाया और फिर नंबर डायल करने लगा। हाँ रशीद कहाँ हो तुम? अच्छा मनाइल घर पर किसके साथ है? साबरी बीबी जी तो अकेली हैं, कह रही थी राम बाबा या बलाल बाबा को बुला लेंगी। जिहान की फ़ोन पर गिरफ्त यकदम ही मजबूत हुई। कॉल काटता बाहर की तरफ बढ़ने लगा। कहाँ जा रही हो जियान? ईशा ने उसे इजलत में जाते देखा पूछा मगर वो नज़रअंदाज करता निकालता चला गया। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। वो घर पर अकेली थी, अगर इसे कुछ हो जाता ये सोचे की रूह फना कर गई थी। वो लड़की जितनी भी बेवफा और धोखेबाज सही मगर इस कंडीशन में उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। झटके से पोर्च में गाड़ी रोकी और भागता हुआ लाउंज में आया। मनाहिल मनाहिल फिक्रमंदी आवाज़ में उसे पुकारा और भागता हुआ रूम में आया। वो वहाँ भी नहीं थी। इस बार दिल शिद्दत से धड़का था। कदम बालकनी की तरफ बढ़ा दिए मगर सामने का मंजर देखकर सुकून का सांस खारिज किया। वो आंखें मूंदी चेहरे से सर टिकाए बैठी थी। मनाहिल उसका करीब आकर गुस्से से झिंझोड़ती तो हड़बड़ा उठी। क्या ड्रामा है ये? क्या कर रही हो? यहाँ गई क्यों नहीं थी सबके साथ? उसके कंधों पर दबाव डालकर सख्ती से पूछा। उसने रोई रोई आंखों से उसे देखा। छोड़े मुझे, आप तो ईशा के साथ चले गए थे ना, तो क्यों आए वापस? उसके हाथ अपने कंधे चढ़ाती वो भी गुस्से से बोली। तो तुमसे किसने कहा था मैं इंतजार करती? हताखामिज लहजे में कहा तो उसकी आंखें नम कर गया। सही कह रहे हैं, क्या जरूरत है आपको इंतजार करने की? ईशा है तो आपके लिए काफ़ी है। इसे धक्का देते ही कमरे में आ गई और गुस्से से अपनी ज्वेलरी नोच नोच कर उतारने लगी। पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? उसका हाथ पकड़कर रोका। नहीं जाना मुझे, कहीं चले जाएं आप। अपने हाथ छोड़वा कर आंसू रगड़े। जियान को समझ नहीं आ रहा था वो ऐसे रद्द-ए-मौल क्यों दे रही थी। मनाहिल 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, अपना हुलिया दुरुस्त करो, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। उसे बोल
करता जाने लगा, जबकि मनाहिल तो सख्ती की किसी कैफियत में थे। कितने दिन बाद वो शख्स उसे मन की बजाय मनाहिल कह रहा था। उसका दिल शिद्दत से रोने को चाहा, मगर अचानक ही दिमाग में ठेसी उठने लगी थी। आह! अपना सर पकड़कर करावटी से उसकी आवाज़ पर ब्लड का तेजी से करीब आया। क्या हुआ? उसे बेड पर बिठाकर चेहरा थामा। कुछ नहीं, आप जाएं, आई एम फाइन। वो खुद पर तरस नहीं खिलवाना चाहती थी। इसके हाथ हटाते उठकर ड्रेसिंग रूम में जाने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुम्हें इस हालत में अकेला छोड़कर जाऊंगा? दांत पीस कर उसे बाजू से पकड़ कर रोका। शायद आपको मालूम नहीं है, मैं पिछले 2 घंटे से इसी कंडीशन में अकेली थी। आंसू रगड़कर तंजिया लहजे में कहते उसे देखने लगी। तुम जानती हो, मैं लाइल मुताज जब से सुर्ख हो रही थी। हाँ, जब आप ईशा के साथ होते हैं तो बाकी सारी दुनिया भूल जाते हैं। तो मुस्कुराना लहजे में कहती ड्रेसिंग के सामने खड़े होकर टिश्यू से अपना मीठा मीठा मेकअप साफ करने लगी, क्योंकि आज उसकी बहन की शादी थी और वो अपनी वजह से उसे नहीं रोक सकती थी। मूडी तो ऐसे ही घूर रहा था। तुमने किसके लिए अपनी दुनिया बुला दी, जरा ये भी बता दो। सख्ती से उसके बाजू को पकड़ा, वो करा उठी। आह! दर्द हो रहा है मुझे, तड़प कर उसकी आंखों में देखा जहाँ चिंगारियां सी भरी हुई थी। जवाब दो, किसके लिए करिए ये कंप्रोमाइज़? उसे करीब करते सख्त लहजे में बोला। दिमाग खराब हो गया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा कंप्रोमाइज़? कसमसा कर अंदाज होना चाहा। उसकी बातें सर पर से गुजरी थी। जाननी तो मुस्कुराना निगाह इस पर डाली और खुद से दूर किया। नीचे आओ, देर हो रही है। तेजी से कमरे से निकल गया था वो भी। उसके लफ्जों में उलझी नीचे चली गई। रामीन की शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था। इस 1 हफ्ते में इसने मोहित का रवैया नॉर्मल पाया था। वह जहाँ जाने को कहती ले चलता, और अगर वो खुद भी कहीं जाती तो रोक टोक कभी न की। मगर वह ये बात भी अच्छी तरह से जान गई थी कि मोहित की फायदा मलिक में जान बसती है। इसलिए वो मीन के साथ खुश मिजाजी से ही रहती थी, क्योंकि वो मोहित की नज़र में कभी भी बुरा नहीं बन सकती थी। मोहित आज कहीं बाहर चले। वह लैपटॉप पर बिजी था जब वो पीछे इसके गले में वाहे डालकर बोली, रामीन यार, घर में कुछ बना लो, आज बहुत थक गया हूँ। लैपटॉप बंद करके सीधा लेट गया। नहीं, मुझे बाहर जाना है, उसने रूठ कर कहा। प्लीज़ यार, मैं थक रहा हूँ, आज डिनर घर पर ही कर लेंगे। मोहित ने मुस्किन से शक्ल बनाकर उसे देखा। लेकिन मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता, बुरा सा मुंह बनाकर बोले तो उसे देख कर रह गया। कुछ भी नहीं आता? वो कुछ सोच में पड़ गया। तो जाओ मेहरीन साहिबा, किचन से रेसिपी लेकर कुछ बनाओ। उसने घर की मेड का नाम लेते इत्मीनान से कहा। अब मैं नौकरों से खाना बनाना सीखूंगी, अगर तुमने कुछ खाना ही है तो इसी से कह दो। उसने नखूबों से सर झटका। रामीन, वह बहुत पुरानी मुलाजमा है हमारी, और मामा इनके लिए काफ़ी टची भी है, लिहाजा ख्याल रखना। आइंदा नरम लहजे में से तनबीह कर गया। तो अब मुझे मिडिल क्लास लड़कियों की तरह तुम्हारे आगे खाने सजाने होंगे। उसका काला सेट करती दिलरुबा अंदाज में बोली कि ऊपर क्लास खवातीन अपने शोहरों को भूखा मार देती हैं। उसको खुद पर से हटाता दोबारा लैपटॉप खोल कर बैठ गया। अच्छा, कल हम मामा के घर चलेंगे, ओके? बात बदल कर गुस्से से बोली, मगर मोहित की कीपैड पर उंगलियां यकदम ही थम सी गई थी। उसकी बात पर मैसा हिला के रामी ने शिद्दत से उसकी खामोशी महसूस की थी। उसे मनाहिल से शिद्दत से नफरत महसूस हुई। वो कुछ भी कर लेती, मनाहिल को हमेशा इनके दरमियान ही रहना था। वो कितनी भी कोशिशें कर लेती, मगर मोहित के दिल से उसकी यादें कैसे मिटाती? अच्छा बताओ तो क्या खाओगे? उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए जल्दी से बोली। जो तुम्हें इजी लगे। मोहित ने शरारत से कहा तो उसके बाजू पर पंच मारती उठ खड़ी हुई। अंडा बॉयल करके लाऊंगी अब तो, उसे घूर कर कहती कमरे से निकल गई। उसने मुस्कुराते हुए उसे जाते देखा था। तुम्हारी यादों से पीछे छुड़ाने के लिए किस हद तक कामयाब हो सकूंगा मैं नहीं जानता, मगर मेरा वादा है खुद से, मैं कभी इस मोहब्बत करने वाली लड़की के साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तसव्वुर में वो इससे हम कलाम था जो कभी इसकी यादों का कुल महवर हुआ करती थी। जारी है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपका एपिसोड? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें, ताकि नए आने वाले नॉवेल्स की अपडेट आपको मिलती रहे। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।